Hello everybody, my name is Mahika. I study in class 7th. My school name is Army Public School Dholapa. I will be teaching maths class 7th, chapter 11 parameter and area. हमारे इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, तो मैं 11.1 से पहले जो है सारे फॉर्मूले वो बता दूंगी कि वी कैन डू एक्सरसाइज 11.1. सो बुक के हिसाब से चलिए, तो हमारा फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल. अच्छा, आई कैन मेक शेप. You can write the name also. I do not have space that much, that's why I have written like this. So एरिया जो होता है, एरिया निकालने का फॉर्मूला रेक्टेंगल का, पैरामीटर तो होता है कि अंदर का, और मतलब अंदर का कितना है पैरामीटर, और एरिया होता है कि आउटसाइड कितना है. सो एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है वो है L इंटू बी. फॉर्मूला है L इंटू बी. सो हमारा हम कुछ भी ले सकते हैं. एग्जाम्पल जैसे इस रेक्टेंगुलर की लेंथ है, हमेशा लेंथ बड़ी होती है ब्रेथ से, तो आपको पता ही होगा. सो लेंथ में ले लेती हूँ 45 एंड breadth I should take 30. Breadth is the shorter one side and length is the bigger one. Like this, it is also, whiteboard is also standing in the length of rectangle. See, this is the length which is the means जो whiteboard की जो ज़्यादा चौड़ी साइड है उसको हम लेंथ कहेंगे, जो छोटी साइड है हम उसको ब्रेथ कहेंगे. और अब हमारा हम क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं. हम वैल्यूज इस फॉर्मूले के हिसाब से पुट करते हैं. सो लेंथ है 45 इंटू 30. सो अब हमारा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा एरिया आ जाएगा. सो लेट अस मल्टीप्लाई इट. 45 इंटू 30. 0 5 is 0, 0 4 is 0, and 3 5s are 50. So 1 carry 5 down. 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12. 12 क्या 30. So answer is 1350. This was the carry, do not be confused. Answer is 1350. 50. Let us erase it. This is the rough work. You do not have to do it in the fair. When we do maths, our parents said that every time take a rough to do the solvation. So you can do it in rough also. Or if you are doing only rough notebook only, so you can do like this only, where like that I have done. So unit. I have forgot to write unit here. If it is in centimeter, so here if I write with it unit, so it will be 45 centimeter into 30 centimeter. So if we multiply centimeter into centimeter, it will be centimeter square. Every time the area which answer will be coming, the unit will be centimeter square, meter square, kilometer square, like this only. Means the area answer will always be in the square. Okay, so now let's do the next question. So our next example is second. We are going through the book, so next formula is okay. Here is a rectangular box. What to say? Rectangular sheet. Its area is 500 centimeter. Centimeter, it's already written, na? Okay. Centimeter square. And its length is 25 centimeter. We can write 25 centimeter. We do not know the breadth, and we have to also take out the perimeter.
Okay, this is the question. So here to taking out, we have to, हमें ब्रेथ जब निकालनी है तो मैं ब्रेथ को बी मान लेती हूँ. ओके, ब्रेथ को मैंने बी मान लिया एज अ डेटा. डेट आपको कोई क्वेश्चन करते हो, आप जैसे कोई मिसिंग होता है तो आप एक्स ले लेते हो, उसको लेट बी एक्स, लाइक ऐसे ही. अब मैंने ब्रेथ को बी मान लिया. ठीक है. सो जब भी हमें लेंथ दी होती है या ब्रेथ दी होती है, हमेशा एरिया गिवन होगा हमें, या तो लेंथ नहीं दी होगी या ब्रेथ नहीं दी होगी. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज माइन, take out the breadth. Then second question is take out the perimeter. If we will be taking out the breadth, then it's very simple taking out the perimeter with its formula 2l plus b. So now we have to taking out the this breadth, area upon length. This is the formula. If अगर यहाँ पे breadth दी होती, लेंथ निकालनी होती, तो यहाँ पे मैं बी लिखती हूँ, बट यहाँ पे हमें बी दिया है, मतलब बी निकालना है, लेंथ दी हुई है. सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ पहले कितने का है, 500 अपॉन 25. तो अभी मुझे 5 से कटते हुए दिखते हैं. हमें पहले सबसे छोटे से काटना है. 25 से भी कट जाएंगे, बट हमें पहले सबसे छोटे से काटना है जो इजी हो. अभी आप 25 की टेबल लिखोगे, जिनको याद होगी ओके, बट 100 में से 99% लोगों को याद नहीं होगी. सो 25 की टेबल आप लिखोगे, फिर देखोगे 500 कितने में आता है. इट विल टेक टाइम. तो वी विल स्ट्रेट अवे कट विथ 5. 5 5 जा 25. हम जब भी ऐसे कट मारते हैं नीचे से ऊपर मारते हैं, ऐसे नहीं मारते, ये रॉन्ग होता है. ठीक है. सो 5 की टेबल में 50 10 पे आता है. ओके, इट विल बी 100. बिकॉज अगर हम 5 को 50 से काटेंगे, 5 10 जा 50, 0 बच गया, 0 ऊपर चला गया. नाउ 5 1 जा 5, 5 2 जा 20. सो दिस इज माय आंसर की ब्रेथ है आपकी 20 सेंटीमीटर. हमने इसको 5 से काटा. पहले 5 5 जा 25, देन 5 10 जा 50, 100 आया. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 बच गया, 0 ऊपर आया. तो 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होती. अब 20 और 1 तो आगे कटेगा नहीं. अगर यहाँ पे जैसे 5 होता या कुछ होता तब 20 और 5 और कट जाता, बट यहाँ पर ओनली 1 है. तो आंसर इज स्ट्रेट अवे 20 सेंटीमीटर. समय मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया. इट इज 20 सेंटीमीटर. अब हमें निकालना है सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, मीन्स पेरीमीटर. सो नाउ आई विल बी टेलिंग यू द पेरीमीटर. For taking out the perimeter, the formula is 2l plus b. अब मैं आपको बताऊं कि आपने कई जगह पहले भी देखा होगा, कंफ्यूज भी होते होंगे. जिनको आता है इट्स ओके. कि जैसे आपने देखा होगा कि कई जगह ऐसा भी लिखा होता है, कई जगह ऐसा भी लिखा. ये आपको समझाने के लिए है, और ये भी अब जैसे जो सीखने वाले बच्चे होते हैं उनके लिए है. ये जो सीख चुके हैं और बहुत आगे जा मीन्स बहुत आता है, इजी है उनके लिए ये पैरामीटर निकालना, उनके लिए है ये. इसमें भी कुछ है नहीं, बस मल्टीप्लाई हम इसलिए ऐसे लिखते हैं. यहाँ जो मल्टीप्लाई है इसका कोई मतलब नहीं है, मीन्स ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है. ओके, यहाँ पर ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है. आपने ये वाला फॉर्मूला देखा होगा, प्लस माइनस प्लस इंटीजर, फर्स्ट चैप्टर इन दिस बुक. ऐसे जैसे उसमें दिया होता है -26, स्ट्रेट अवे यहाँ पर ब्रैकेट जैसे -36. अब ये ब्रैकेट देंगे तो इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है, तो हम ऐसे माइनस माइनस प्लस ऐसे करना होता है. यहाँ ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है. सो आप 2l plus b ही लिख सकते हैं. अगर आपको 2 मल्टीप्लाई बाय l plus b अच्छा लग रहा है तो मीन्स ईजी लग रहा है तो वही कर लो, बट आंसर सेम ही निकलेगा, सेम तरीके से ही निकलेगा, तरीका कोई अलग नहीं होगा. सो अब मैं करती हूँ यहाँ पर. अब मुझे लेंथ और ब्रेथ मिल गई तो पैरामीटर इज इजी. नाउ लेट अस पुट द यूनिट्स. लेंथ इज 25 एंड ब्रेथ इज 20. सो 25 प्लस 20. अब हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा देंगे, क्योंकि हमें ऐसा करना है कि हम जितना ब्रैकेट खोल सके हम उतना करना चाहिए. तो मैंने फॉर्मूला लिखा था, फॉर्मूले की तरीके से अब मैंने यूनिट्स उसके अंदर पुट किए हैं.
अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगी, पहले मुझे 25 + 20 करना होगा। यहाँ कर लेती हूँ मैं कंफ्यूजन के लिए 5, इफ एनीबडी हैज कंफ्यूजन, 5 2 2 + 4 45। सो मैं इसको इतने को इरेज कर देती हूँ, आई डू नॉट इसमें स्पेस। 45 × 2, 5 1s are 5, 5 2s are 10, कैरी 1, फिर 4 1s are 4, 2s are 8। यहीं पर आपको मैं ऐसे करके दिखा देती हूँ अगर किसी को कंफ्यूजन है। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 4 1s are 4, 4 2s are 8, + 1 90। ओके, सो आंसर इज 90 सेंटीमीटर। सो हमारा ये आंसर निकल गया, मीन्स हमारा सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर निकल गया। इस एक की क्वेश्चन में 2 पार्ट का निकालना था हमें आंसर। सो पहला क्वेश्चन था कि ब्रेथ निकालो, सेकंड क्वेश्चन वाज पैरामीटर निकालना है हमें। सो हमारा बी भी निकल गया, पी भी निकल गया, मीन्स ब्रेथ भी निकल गई, पैरामीटर भी निकल गया। हमने साथ में साथ ये भी सीख लिया कि पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है और ये कैसे दिखाना है कि अगर हमें कभी लेंथ दी हो ब्रेथ, जैसे इसमें ही अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगी, मीन्स ब्रेथ ऊपर कर लूँ और 20 अगर मैं यहाँ पे खाली छोड़ दूँ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दूँ मैं लेंथ की जगह पे और ब्रेथ 20 रहने दूँ, तो आपका भी आंसर ऐसे ही निकलेगा, एरिया अपॉन ब्रेथ। तो आप आराम से कर सकते हैं 500/20। करके दिखा देती हूँ। 0 में से 0 कटा, फिर उसके बाद आप आगे कर ही लेंगे। ओके, so next we will be doing with the third example. We have done how to taking out the area, and if L is missing, if B is missing, how to take out। मीन्स आपको जब ब्रेथ मिस होगा या लेंथ मिस होगा, आपको हमेशा या तो एरिया या लेंथ दिया जाएगा या एरिया या ब्रेथ दिया जाएगा, तो आपका इजी रहेगा, आपको डिवाइड करना होगा, मीन्स अपॉन में। हमने एरिया निकालना सीख लिया, एल कैसे निकालते हैं, बी कैसे निकालते हैं, ये भी सीख लिया। अब हम सीखेंगे कि अगर जैसे हमें दिया है किसी का फेंसिंग रेट निकालने को, ज़्यादातर क्वेश्चन फेंसिंग रेट के ही होते हैं, तो हमें जैसे मैं कोई एग्जांपल देती हूँ अपने घर का ही। जैसे मुझे ये है मेरा घर, ओके, और रेक्टेंगुलर में ही समझ लो, स्क्वायर में, व्हाट टू डू, जो भी समझो आप। हमारा ये है स्क्वायर, मेरा आपका घर की साइड, और ओके, सो मुझे इन चारों साइड, मतलब तीनों साइड में, हेयर हेयर हेयर, मुझे यहाँ पर फेंसिंग करनी है। ये वाला आगे का पार्ट मुझे खुला छोड़ना है। ओके, सो 3 साइड की करनी है, तो मैं किसी का 12 ले लेती हूँ, किसी का 13 ले लेती हूँ, और ये 20, और ये सेंटीमीटर में। ओके, कंफ्यूज मत होना, सेंटीमीटर में। सॉरी, आपको यूनिट लगाना ज़रूरी होता है, नहीं तो आपके मार्क्स काट सकती है मैम। जिनको लगता है कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में नहीं मार्क्स काटने चाहिए, तो वो नहीं काटती है, नहीं तो काट सकती है। हाफ मार्क्स आपका जा सकता है, इसमें कुछ नहीं है। अगर आपने पेपर पूरा सही किया हो सकता तो हाफ मार्क्स से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सो 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 20। तो हमारा जो है इसमें तो मेरा इसमें पूरा है ये, मैं पहले इसको ना प्लस कर लेती हूँ। ओके, 20 + 13 + 12, हाउ मच इट इज, 3 4 5 2 3 4 45 इज माय आंसर। ओके, सो मैम 13 + 20 + 12 = 45 सेंटीमीटर। तो इतना है मेरा 45 सेंटीमीटर आंसर। सो अब मुझे बताना है कि अगर 150 मेरा पर मीटर कॉस्ट है फेंसिंग का। सो अगर मेरा अच्छा सॉरी,
हाँ सॉरी, सही है कि इतना है, और मेरा पर मीटर जो कॉस्ट है वो फेंसिंग का 150 हमें रख के निकालना है कि पूरे प्लेग्राउंड में हमारा, मतलब मेरे घर की पूरी फेंसिंग में हमारा कैसे निकलेगा आंसर। सो हमारा 45 आया और हमें 150 का निकालना है, तो 45 इंटू 150, सो इजी। 150 इंटू 45, 5 zeros are 0, 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 7, 5 fives are 25, 5 ones are 5, 6 7, 5 zeros are 0, 5 ones are 5, 5 fours are 20, 4 ones are 4, 5 6. Answer is 5 7 6, 6750. इसका ऑलरेडी जगह नहीं है। 5650, सॉरी 6750। सो हमारा ये निकलने के बाद ये पता चल जाता है कि हमारा इतने पैसे लगेंगे पूरे कवर करने के लिए। अगर हमारा पर मीटर कॉस्ट हम ले रहे हैं 150, तो हमारे पूरे 45 के लिए कितना लगेगा, तो हमारा 6750 लगेगा। सो वी विल बी स्टार्टिंग विद नेक्स्ट क्वेश्चन।